Hello everyone. So in this series of so many people going to JB, that is 37 people from Cracketters have gone to JB और सबके मैं interviews लेने की try कर रहा हूँ. We now have Sudhanshu Mishra who's going to take an interview, who's going to give us an interview कि उसका अब तक का JB का experience कैसा है, what has been his journey, what were the roadblocks and how did he beat them. सुधांशु का जो जर्नी है आई वुड हाईली रिकमेंड तुम लोग ध्यान से सुनो. ही एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. ही अंडरप्लेस दैट वो कितना अच्छे से पढ़ रहा था बट एक्चुअली उतना वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है. वो थोड़ा ध्यान से समझो और जो वो बोल रहा है उसको थोड़ा वो अगर 9 बोल रहा है तो उसको 10 ही समझ लेना. So yeah, Sudhanshu also again Sudhanshu is also an ex-employee of Crack Every Test. So I'm very proud of him for 2 reasons: for being my student and for being an employee who got into such a great college. So yes, Sudhanshu, let's just go on to you and start off with अब तक जेबी का जो पिछले 10 दिन हुए हैं, 10 दिन पहले हुआ इंडक्शन प्रोसेस खत्म हुआ है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत हेक्टिक, जबरदस्त. पहले तो आई वाज वेरी एक्साइटेड गेटिंग इनटू जीबीआईएमएस. अमेजिंग फैकल्टी, अमेजिंग सीनियर्स, अमेजिंग बैच ऑफ स्टूडेंट्स, नो डाउट. एंड ओवरऑल बहुत लग गई थी हमारी. क्योंकि so like आशुतोष मैं बोल रहा था, आशुतोष बहुत डाउन प्ले कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है सीनियर से. बहुत स्ट्रेसफुल होता है इंडक्शन, ये बात सारी कॉलेजेस को पता है that the induction process is stressful. It is very strict, not stressful, it is very strict. तो डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है. Yeah. But tell me why such discipline? What is the discipline required for? क्यों इतना स्ट्रेस लगता है? I guess they are basically preparing us for the corporate life. क्योंकि वहाँ पे we have to be punctual. The way we talk, the way we look. Yes. So that creates a strong impression about a person. So I guess they are preparing us for that. Yeah. It was a bit too strict, but well and good. Part of the journey. अरे देखो, अगर तुमने 100 लेवल का बॉस को हरा दिया है गेम में तो तुम 10 लेवल के बॉस को आराम से हरा पाओगे. वो वाला सीन है यार. हाँ, definitely. और वो लोग वो वीडियो गेम के विलेन की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग को. No doubt, no doubt. Okay, so just tell your overall prep journey. Prep journey कैसा था? कहाँ पे तू अटका था? What helped you? What were the things which demotivated you? Because obviously you also took the CET twice, right? Yes. Yeah. तो Sudhanshu is a repeater, उसने CET अब तक 2 बार दी है and the second time he got JB. तो ये सारी चीजें तू बता that what helped you and what was stopping you? How did you overcome that? Well, I began my journey after my graduation. I completed it in around May last year, 2022. फिर due to some personal and medical issues, I wasn't able to concentrate on my studies. So I began properly in August, I guess. August, okay. I gave a mock. That was a bad decision. Beginning में पहले ही mock दे दिया just to see where do I stand. दिया, I got hardly a 67. 67 marks, okay. 67. And then उसके बाद बस I was like worried क्या करना है, तो गए हम online YouTube, found you, Crack Every Test. आपने बताया, आप at that time just 20 or 25 days before you were giving us a schedule for what topics to do on this day, these many days left. क्या करना चाहिए, क्या मैं स्टूडेंट्स को टाइम टेबल बना के देता हूं. I followed it strictly. आपके सारी वीडियोस देख डाले मैंने, उसमें जो भी थे क्वांट्स के, LR के, ढूंढ के I was like I have to make sure that this is the one that I will join. क्योंकि अभी तो 1 महीने में no doubt मुश्किल है, तो आगे I was determined to continue with it CET के लिए. Then मैंने दिया and I was in the first lot. It was overall अच्छा था, but time management में issue हो गया जिसकी वजह से थोड़ा problems हो गए. CET 22. टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया बिकॉज आई वाज जस्ट डूइंग द प्रैक्टिकल स्टफ, शॉर्टकट्स एंड ऑल. टाइम मैनेज मैंने मॉक्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया था. मॉक्स मैंने एक भी नहीं दिया था. एक दिया था, इट वाज नॉट वर्थ इट. फर्स्ट मॉक था. देन अगेन ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस, लूजिंग अ फ्यू लव्ड वंस, आई हैड टू कलेक्ट माय सेल्फ. आई डिड इट टिल December. I joined your course properly on set from December. And उसमें मैंने पहले आपके जो ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके थे बिकॉज आई विल मैंने वो कंप्लीट करना चाहा, लेकिन पहला आपका you joined in between the batch, right? Yes, in between. लेक्चर्स होने बाद में ज्वाइन किया था. एंड उसके बाद वहाँ पे पहला लेक्चर मैंने आपका एडवांस देख लिया ऑन SICI. लाइव लेक्चर बैठा था. यस, लाइव लेक्चर बैठा था बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस द एक्सपीरियंस. पर्सनली पूछना बिकॉज वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव. तो मैंने उसमें किया, थोड़ा लेट समझ रहा था, बट आपके प्रीवियस वीडियोस जो मैंने देखे थे क्रैक एवरी टेस्ट के,
That was very helpful. वही था लॉजिक मेरे को धीरे धीरे समझा बट आई वॉज एबल टू कैच अप ऑन इट. फिर 2 वीक में आपने जो शेड्यूल दिया था क्रैकरवी टेस्ट से हमको मिलता रहता है कि जो लेट कमर्स है उनको 2 हफ्ते में कंप्लीट करना है. these many lectures are done with. तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया. I completed in within 2 weeks and then at the end of December जब मैं I was like going to prepare with the different sums exercise cons में LR में practice करने वाला था तभी बॉम्ब फूटा. That is CET आने वाला है मार्च में. Now with 3 months left I was a bit nervous but still let's go with the flow. मैं गया. उसके बाद मैंने आपने स्टार्ट किया था हमारा 10th Jan से mocks. 10 Jan को I gave the mock का timetable. हाँ, for the entire Crackerby test batch. Yeah. So and you told us to make sure that we prepare it in groups. Follow किया हमने. We made a group of 3. Each one of them contributing separately. One for LR, one for Vobel, one. You were for Quants. Shweta was for English. Yeah. LR was Sudhanshu. Swanand. Sorry. Swanand was उसका मार्किंग स्कीम अलग ही था. He can just solve it in a minute. Confident डाउन हो जाता था. But ट्रिक्स थोड़े बहुत समझ आता था वो किस नजरिए से देखता है. बट वही ना कि किसी का अगर एलआर स्ट्रांग है यू ट्राई टू लर्न दैट फ्रॉम दैट पर्सन. श्वेता का जैसे इंग्लिश इज वेरी स्ट्रांग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज शी ब्रेक डाउन वर्ड. वो समझती कैसे वो ग्रामर का कौन सा रूल इधर अप्लाई करते हैं जिससे फास्ट सॉल्व हो जाता है. हां, दे यूज्ड टू लुक एट यू फॉर क्वांट्स का ट्रिक्स. सो Sudhanshu when he was working with me we used to have these competitions speed maths wale where Shweta used to keep the timer. Shweta was also working with Crackerby test. तो Shweta used to keep the timer और वो random sum देती थी हमें और same sum मैं और Sudhanshu same time पे solve करते थे. तो Sudhanshu या तो मैं उसको just beat करता या फिर वो मेरे को just beat करता. We were almost same. That makes me very proud that he has actually come a long way in his speed maths का journey also. That उसने speed maths इतना practice किया है, which is like I have been doing it for years. And he's been doing it with me for 1 year. But उसने practice इतना ज़्यादा किया that he was able to very much beat me also many times. So that shows the hard work that he has done overall. Yeah. And so talking about the speed maths, it is one of the most important concepts. We were given a few questions, 20 about questions for speed maths, multiplication and all. They were very useful. On a repetitive basis, if we solve it consecutively करने पे I was able to approach a quant question more easily and solved it more efficiently and quicker. Then that was a part. So we have the Crackerby test का application this year. तो उसमें मैंने specially speed maths की practice डाली है that you can go and उसमें there are not just like इसका square root ढूंढो इसका ये करो. There is multiplication of square roots. क्यूब रूट फाइंड करो रैंडम नंबर का 898 का क्यूब रूट फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 766 का स्क्वायर रूट. वैसे तो बाद में उसमें कुछ ऐड कर दो. जो काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई गिव इन द लेक्चर वैसे क्वेश्चंस वहां पे ऐप में फ्री आ जाएंगे. दैट्स फॉर ऑल द क्रैकरबी स्टूडेंट्स. वो उनको ये फीचर मिलेगा दैट तुम्हें सम बनाने की जरूरत नहीं है. सम बनाया है बस सॉल्व इट. द सेम विद वोकैबुलरी. रोज वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें रोज सॉल्व करना है. दैट्स व्हाट वी हैव डन दिस ईयर. या वोकैबुलरी मैंने मेनली अप्रोच जो लिया था वो रीडिंग से था बिकॉज ओरल ग्रामर सब कुछ रीडिंग स्पीड कुछ हो जाता है. वो कलेक्टिवली हेल्प करता है चाहे वो एलआर में हो क्वांट्स में हो. वर्बल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बहुत लोग छोड़ देते हैं बट प्लीज मेक श्योर यू डू इट प्रॉपरली. वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है. टाइम मैनेजमेंट का एफिशिएंट पार्ट है वो. हाँ. So now the group helped you very much with getting better at the other topic or getting better at the other sections. Yeah, we used to discuss the mocks. That was very good. Number is not as much important. कितने mocks दे रहे हो. The most important thing is how well you understand your problems, mistake, weakness, and your strengths. उस हिसाब से you have to decide a strategy depending upon your strong and weak points. तो वो बहुत help करेगा आगे जाके. So what in Crackerby test का पूरा your duration with Crackerby test, what helped you, like what are the pointers that helped you out the most? कौन सी चीजें help की? Crackerby test first of all was the basic, the group, the atmosphere, the competitive spirit that we had, and your 120 plus batch. वो join करने की जो इच्छा थी, yeah, I have to be a part of it. That was very pushing. वो रखता था कि हाँ करना है. हम लोग लीवे नहीं लेते थे कुछ भी. Then उसके बाद आता है the speed maths obviously. Reading regularly, discussions for the mocks that if you are in a group, discuss it well. Then further comes the mock buddy sessions. The Crackerby test, your mock buddy session was a great help. Explain them what mock buddy session is. Mock buddy sessions are where Jigar sir, along with about 200 plus students, solves a mock live within the given time period, and he shows us his approach for the mocks.
what he does, and the main pivotal point around which the mock is given is the ABC method. अभी करो, बाद में, and छोड़ दो. This is very important for, as I said, strategy, time management बहुत important है. Make sure you pick the easy ones, then go with the ones that you are ठीक ठाक, and you want doubtful about. Doubtful है, मत करो, leave it for the afterwards. But make sure you approach or do a mock with this strategy. It will be very. Strategy is very helpful. So what? कैसा होता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ. You will see on my YouTube videos also मैंने ABC strategy बताई है. Nowadays even a few other YouTubers have started putting in the ABC strategy में अलग नाम से डालते हैं वो लोग, but they are started putting in the same thing. But सिर्फ बोलना और एक्चुअली उसको एक्शन में देखने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है. So what I did was that मैं खुद बैठ के मॉक सॉल्व करता था. मेरी स्क्रीन शेयर होती थी और सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहा. मैं मॉक के टाइम बोलता भी रहता था ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा. एंड उसके बाद होता था 2.5 घंटे के मॉक के बाद 4 घंटा एनालिसिस पीरियड चलता था, विच वाज मतलब हर बार एनालिसिस शुड बी लॉन्गर देन मॉक. ये बात समझ जाओ. तो एनालिसिस पीरियड इज वेयर आई यूज्ड टू टीच दैट. ये टाइम पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हाइल सॉल्विंग दिस सम, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी सॉल्व इट फास्टर. So that really helped out the student. This is the common feedback that I got. Yeah. So Ranju, what next? The next would be the group. As a group, we used to solve each other's doubt. जो भी doubt है, you can put it on the group. Everyone has different suggestions, but they are very good because you get a different view for different angles from each and every one. तो उसे you can ऐसा shortcut अचानक मिल जाता है कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं. That was very good कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इट वाज वेरी हेल्पफुल क्योंकि वो एज अ ग्रुप बहुत हेल्प करते थे. अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक शुभम होता था, तू क्वांट्स के डालता था, देन फॉर एलआर स्वारम इज टू पुट इन, देन अभिषेक बेस्ट अगर वो क्वांट्स के बहुत अलग अलग तरीके देता था. शुभम सर यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ क्वांट्स के अलग अलग तरीके. वो अप्रोच अलग हो जाता है सबका. एंड बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज सेम सम को है ना, हमने मैं अगर ये टाइप के सम को ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे दिमाग में वही मेथड आएगी. बट इफ समबडी हैज सॉल्व्ड दैट विद देयर ओन मेथड, they will try to tell you that अरे सुन ये ना, तो ऐसे भी सोच सकता है, तो फर्क पड़ जाएगा. एंड वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, पता चल जाएगा कि यार ये सम में मैं इसका मेथड यूज करूंगा, ये सम में इसका मेथड यूज करूंगा. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम इन द ग्रुप इटसेल्फ. ऑलमोस्ट 24 घंटा ग्रुप में मैसेज चलते रहते थे. ऑन एन एवरेज दिन के समवट 1000-1200 मैसेजेस ऑन एन एवरेज ग्रुप में रोज के होते हैं. 2-3 घंटे ना देखो तो 100 से ऊपर पेंट अप हो जाता था मैसेजेस. हाँ वो हो ही जाता था. बट दैट इज व्हाट, टू थिंग्स. एक, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है दैट मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे किधर अटकना नहीं चाहिए. एंड सेकंड, जो लोग थोड़ी ढील दे रहे, जो लोग थोड़े आलसी हो गए, उनका मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया, उन लोग को ग्रुप देख के उल्टा मोटिवेशन मिलता है कि यार सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ने लगता हूँ. दैट क्रिएट्स दैट पॉजिटिव पीयर प्रेशर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या सो सुधांशु, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डिड यू यूज एंड व्हाट मटेरियल डिड यू सजेस्ट द स्टूडेंट्स? तुमने क्या यूज किया वो भी बताओ, उनको क्या सजेस्ट करेंगे वो भी बताओ. मैंने मेनली टेस्ट फंडा यूज किया था. मॉक्स बुक्स ऐसा बता, मॉक्स इसके यूज किए थे, बुक्स इसके यूज किए थे, वैसा बता. बुक्स के लिए फ्रॉम टेस्ट फंडा दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द क्रैक एवरी टेस्ट. हां, वो टाइम पे क्रैक एवरी टेस्ट का टेस्ट फंडा के साथ था. हां, नाउ वी हैव आवर ओन बुक्स. अभी तो आई हैव वर्कड ऑन इट, आई नो अबाउट इट. तो उसमें दी बुक हैज ग्रेट क्वेश्चन. क्रैक एवरी टेस्ट के जो बुक है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड उसमें बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं. यू मतलब ऐसा नहीं यू विल बी कुछ नया स्टम्बल कर जाओगे मॉक्स में. वो एक जनरलाइज पूरा कर देता है, अलग अलग टाइप देता है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द बुक्स. एंड ओवरऑल मॉक्स के लिए आई वुड रिकमेंड IMS एंड टेस्ट फंडा, नो डाउट. ये दोनों. यस. रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट फंडा एज अ जनरल लेवल वो CT के लेवल पे ही है. नॉट टू मच, नॉट टू लेस. इट्स ऑन अ गुड लेवल. तो वो तुमको बता देगा कि हाँ प्रॉपर तुम एज अ CT एस्पिरेंट कहाँ हो. बट IMS इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि स्लॉट्स कभी बहुत डिफिकल्ट हो गए ये वो, लेकिन प्लस वो एक व्यू भी चेंज कर देता है. इट मेक्स द टेस्ट फंडा या किसी और के जो हैं वो क्वेश्चन सीम्स इजियर. CT के ऑन अ जनरल बेसिस क्वेश्चन सीम्स इजियर बिकॉज IMS के बहुत हार्ड हो जाते हैं. तो लेकिन IMS फिर भी दो बिकॉज वो टफ बनाता है. IMS टफ मॉक्स बनाता है. यस. So my recommendation to students, so this year in crack evidence के mocks, we have made sure that questions are on the tougher side. हमने mocks जो CET का लेवल है उससे ज्यादा टफ लेवल की मॉक्स बनाई है. सो इन द टफ, माय रिकमेंडेशन इज एक
तुम ऐसी मॉक दो जिसमें सीईटी का लेवल है, दैट इज टेस्ट फंडा और ईएलसी, बोथ ऑफ देम हैव सीईटी लेवल मॉक्स, एंड IMS obviously is known for the difficult mocks, and crack evidence mocks also this year are higher than CET level in difficulty. So that is my recommendation, either you take IMS या फिर टेस्ट फंडा, सॉरी IMS या फिर क्रैक एवरी टेस्ट फॉर डिफिकल्ट, एंड साथ में तुम ELC या फिर टेस्ट फंडा के साथ उनको पेयर करो. ओके, या सुधांशु, एनी अदर पार्टिंग वर्ड्स दैट यू वांट द स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू, लाइक ऐसी कौन सी चीज है जो मोस्टली ध्यान बाहर रह जाती है, ऐसी कौन सी चीज है? मोस्ट ऑफ देम छोटी चीजें हैं, लाइक एज इन वर्किंग इन अ ग्रुप. सबको लगता है स्पीड मैथ्स तो हाँ एक आध बार दे देंगे, मतलब 1-2 दिन में दे देंगे, लेकिन कंसेक्यूटिव होना चाहिए वो. प्लस इनिशिएटिव लेना मत छोड़ो कभी भी, बिकॉज लास्ट ईयर अगर मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया होता एंड इफ आई वाज कि हाँ ठीक है मिल तो गया है कुछ देख लेंगे, तो मैं शायद अभी मेरे को पता भी नहीं चलता कि मैं जेबी आ सकता हूँ. या गैप ईयर लेने में हिचकिचाओ मत. इफ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर हो सकता है यू कैन डू इट, जस्ट मेक श्योर कि तुम उतने एफर्ट्स भी डाल रहे हो, नॉट जस्ट कि हाँ हो जाएगा. Put in the efforts. If you are putting in the required efforts, you will get it, no doubt. But just take the initiative, डरो मत. And about crack every test में इस बार तो मैंने as a personal experience मैंने ही काम किया है, तो हमने questions अलग अलग लेवल के डाले थे, उसमें कैट लेवल के भी डाल दिए थे हमने. तो जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ थोड़ा ये ढीला ढाला ना हो जाए. हाँ मिक्स रहना चाहिए एकदम. तो जस्ट वो, और उसमें बहुत सारा डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ये, और टॉपिक्स भी डाइवर्सिफाइड है. ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीटी में जनरली नहीं आते, लेकिन इनके साथ तो वील नॉट बी स्टम्प्ड. एंड प्लस आगे दूसरे वाले एग्जाम्स जो हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर देता है. ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी हैं उसमें. तो चलो, थैंक यू सो मच सुधांशु. सो गाइस, दिस वाज सुधांशु मिश्रा. यू गाइस कैन follow him on LinkedIn. अगर कोई भी और डाउट्स है प्रिपरेशन रिलेटेड, यू कैन मैसेज हिम ऑन LinkedIn, या फिर तुम कमेंट्स में बोल सकते हो. कमेंट्स में जो भी स्टूडेंट वीडियो में है वो वीडियो रिलीज के 2-3 दिन बाद तक एटलीस्ट वीडियोस में रिप्लाईज कर देंगे जो भी तुम्हारे डाउट्स है उसको. Okay, so I hope this video was helpful. I hope all of you got really good insights from Sudhanshu, and as you know, if you have anything, contact him, and just like the video. Thank you very much. Bye everyone.